टेबल बुक आओ, टेबल वहाँ से सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान गिरामी जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मिनिस्टर पंजाब है, बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप तशरीफ लाए। चौधरी फयाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और इनके साथ दीगर मेहमान गिरामी जो आज यहाँ पर तशरीफ लाए, सबका तहे दिल से शुक्रिया। तलावत कुरान मजीद के लिए मैं मुल्तमिस हूँ कारी साहब से दरगाह शरीफ के कारी साहब तशरीफ लाएँ और तलावत कुरान करीम से प्रोग्राम का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. اداسی کے سفر میں جب ہوا رک رک کے چلتی ہے، سواد ہجر میں ہر آرزو چپ چاپ چلتی ہے، کسی نادیدہ غم کا بہت دیکھ لیتا ہوا سایہ، زمین کا آسمان پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے، گزرتا وقت بھی ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو ایسے میں تیری خوشبو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کے نام کی خوشبو دل وحشت زدہ کے ہاتھ سے یوں ہاتھ رکھتی ہے، تھکن کا کوئی غم پھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سفر کا راستہ پھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عادل صافی صاحب سے تشریف لائیں۔ صلی اللہ علیہ یاد میں
باقاعدہ استقبالیہ کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت سعادت پیر سید احمد صابری صاحب کو، لیکن اس سے پہلے میں صرف 2 منٹ کے لیے آستانہ عالیہ درگاہ حضرت بزرگ و شائخ شیخ منظور احمد صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر سا تعارف آپ سب لوگوں سے کروانا چاہتا ہوں۔ کچھ اب آپ نئے ہیں، 1956 سے اس درگاہ کی بنیاد حضرت قبلہ صوفی منظور احمد صابری منظور المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رکھی، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ درگاہ ہزاروں مشتغلان آئے خدا کے لیے ایک سیراب کی مانند ہے، وہ سیراب کر رہی ہے۔ اس کا فیض فیضیاب ہے، نہ صرف روحانی طور پہ لوگ یہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی خدمت کے لیے یہاں سے بہت سارے یہاں کے کام شروع کیے گئے، جن میں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا اجرا کیا گیا تاکہ اس علاقے میں جو گندے پانی پینے کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کے سباب کے لیے یہاں پہ ایک یہ اصلاح انعقاد کیا گیا، اور لوگ یہاں سے وہ والا پانی جو شاید فلٹریشن پلانٹ میں پاسبل نہیں ہے، اس کی صفائی کے حوالے سے ہم لوگ خاص طور پہ بڑے کنسرن ہوتے ہیں تاکہ یہاں کی صفائی کا خیال رکھا جائے اور لوگوں کو یہاں پہ باقاعدہ ایک فلٹرڈ پانی ملے تاکہ وہ بیماریوں کی روک تھام کے لیے اس سے ہم لوگ بھی اس خدمت کا حصہ ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ حفظ کا شعبہ کافی عرصہ دراز سے چل رہا ہے، اور یہاں پہ حفاظ کرام اس ملک کی بہت ساری مساجد میں اس درگاہ سے حفاظ کرام تشریف لے کر گئے، اور وہ آج اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات درگاہوں کے حوالے سے ہوتی ہے تو یہ کہ یہ عشق مصطفیٰ کو عام کرنے کے لیے اپنا رول بڑا ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پہ اولیاء اکرام کی محبت اور ان کے دنوں کے اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے دن منائے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے سرشار ہو کر یہاں پر ایسے محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ مردہ دلوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے روشن کیا جائے۔ یہاں پہ تقریباً یہ 4تھی نسل ہے جو یہاں پہ چل رہی ہے، جو حفاظ اکرام کی ہے، مطلب 4 نسلوں سے یہاں پہ ہم جو حفاظ اکرام کا ناظرہ کا اور حفظ کا یہاں پہ شعبہ ہے وہ آج تک چل رہا ہے۔ استقبالیہ کے باقاعدہ میں حضرت صاحب پیر سید احمد صابری صاحب سے متعلق کو تشریف لائیں اور معزز مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں۔
صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. یہ ایسی جگہ ہے سامراج اقبال صاحب نے آپ کو بتا دیا وہ کافی سارے ہیں کہ میرے فیمور سے اس کے بعد اس صوفی کو ملازمت زیادہ نہیں ہے کیونکہ ملازمت ہے یہ کوئی پیری نہیں کیونکہ ہم پیری پروفیشن نہیں ہوتے ہیں بطور خدمت یہاں کام کرتے ہیں اس لیے یہاں پہ ہم کسی سے کوئی وصولی نہیں کرتے کسی سے گھنٹہ کرتے نہیں ہوتے سب کی سبیلہ یہاں پہ کام ہوتا ہے اگر ہم گھر سے سدسوں سے خود پہلے لے کے چلتے ہیں اگر اس بات شامل ہو جائے تو اس کو بھی ہم پہنچاتے ہیں تو آپ کا اس عظیم موقع کا نشید ہے حضور پیر و مرشد کا 40 واسطوں سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے اور میں خوش قسمت ہوں کہ میری رگوں میں اس بندے کے اندر کا خون ہے جنہوں نے تمام عمر عبادت و ریاضت خدمت محبوب خدا کی میں اپنی بلائی میں نے دیکھا 45 سال میں ان کی میرے سایہ ساری ہے اس کے بعد ان کی پرورش سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سربراہ کی اور جاتے ہوئے مجھے امپورٹنٹ سیکھ کے اوپر کوئی جگہ بتاتے ہوئے اور جیسا ان کا مشن تھا میرے میں تو بہت کمزوری ہیں وہ تو وہی اللہ کے وقت کے پردے کے اندر تھے لیکن جو کچھ بھی میں نے ان سے سیکھا اس کو میں اپنی زندگی میں پریکٹیکل کے طور پہ کام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کے نقشے کو کرنے کے طور پہ کام کرتا صاحبزادہ نام صاحب نے یہاں بتایا یہاں ہمارے پاس ایک ڈسپینسری چل رہی ہے شیخ عبدالرحمن صاحب اس کے سرپرست اعلیٰ ہے اقوام متحدہ ایسوسیشن اس کی نگرانی بھی کرتی ہے انہوں نے امتحان سے بھرپور تعاون ہوا اللہ تعالیٰ لوگ اور اپنے مشن میں کام کرنے میں تعاون ہوا بیٹر قرآن کا بتا دیا کہ میں اپنے ذاتی وقت کی بیان کے لیے یا ذاتی خدمت میں چاہیے کیا کیونکہ یہاں کا پانی بہت خراب تھا اور پانی کے لیے رکھے لوگ یہاں تلاشی کے لیے سکھاتا تھا ایک پرکار مچھلی مختلف کی ضرورت کی ہمارا ہے قرآن اگر کسی نے پڑھنا ہے تو قرآن پڑھ لے نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں ہر کوشش کر رہا ہوں ان کے ساتھ پھر چھٹی ہو گئی اور اگر کسی نے بیماری کے لیے علاج کرانا ہے تو ڈسپینسری شیخ صاحب کے کام میں جاتی ہے اور دیگر انڈر گراؤنڈ بیواؤں کی خدمت اسٹوڈنٹس کی اور جو دفاعی کام ہے اس کے لیے سال میں 2 میڈیکل کیمپ لگتے ہیں آپ کو فری آپ پیسے تو آج مجھے موقع مل گیا میں نے آپ کے خوش اظہار کر دیا تو یہ آپ کا آنا مبارک کی بات ہے اور ولی اللہ کے درگاہوں میں بادشاہ ہمیشہ یہ امید رہی کہ بادشاہ ولی اللہ کے درگاہوں میں آ کے چیزوں کو ساتھ آ سکتا ہے ولی اللہ کو اسے کوئی دنیاوی سروکار نہیں تھا کیونکہ ہر شخص یہ دنیا دار ہے میرے پاس اور آگے کسی کو بتا کوئی کلمہ کلام وید وظیفہ یا کوئی اور نصیحت مجھ سے حاصل کرے تو میرے پیروں میں تمام مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ دین کی تربیت کی بہت سی مثالیں انہوں نے بنائی اپنے حیات مقدسہ میں ساتھ میں جو اس وقت ہیں تیسرا شریف میں ہوتا ہے
میں یہ شکر کی ہے مثال مخلوق کے آگے آنے کا بھی ملتا ہے، دعائیں بھی ملتی ہیں، جو لگے کھاتے جاتے ہیں ان کی دعا کی جاتی ہے کہ وہ دیکھے ان کے بھی رزق میں برکت ہے، عطا فرمائے کہ سے اس معاملے میں میری ماں میری بیگم صاحبہ صاحبزاد جان اور میری بیٹی بچوں تعاون میں ان کے لیے بھی بات ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کار کرنا ہے۔ صاحبزادہ فضائل صاحب میری اور صاحبزادہ تیار صاحب میری چھوٹوں کہ میری محبوب محبت کرتے ہیں۔ آج آپ سب کے سامنے آپ ذرا مجھے فضائل صاحب یہ دونوں صاحبان میرے چھوٹے بھائی، یہ یہاں پہ خدمت کرتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی فقیری سسٹم نہیں ہے، یہاں پہ فقیری سسٹم ہے، اور میں فخر کرتا ہوں اللہ کی طرف سے یہ دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اس سلسلے کی وجہ سے میری بہت عزت کی جاتی ہے، دنیاوی طور پر بھی دینی طور پر۔ جہاں بھی جگہ شریف ہوگی اس فقیر کا نام دراز شادی نظر سے پہچانا جاتا ہے۔ میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ سب تشریف لائے، اور میں خصوص جمع میں خصوصی میرے عزیز دوست بھی بیٹے بھی سب کچھ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو یہاں کی مبارک پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے آپ سب جو ان کے ساتھ تشریف لائے مہمان بازی شامل ہوئے، آپ سب کے لیے میری دعائیں السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حشر تک قائم رہے گی حکمرانی آپ کی، دوزخی ٹہرے گا وہ جس میں نہ ہونے کی، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، ایک مسلم کا محمد بے اجارہ تھا۔ سلام پیش کرتا ہوں سرور کائنات فائدہ نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی جو یہ تقریب ہے، اس صاحب نے مجھ پاک صاحب پر بہت اعتماد کیا، اور اس درگاہ کے سلسلے میں ایک کتاب تحریر کی جا رہی ہے جو کہ پچھلے سامنے میرے اور اس سلسلے میں کافی حد تک کام ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک صوفیاء اور بزرگان دین کا ان کی خدمات ہیں تو یہ ملک قائم ہوا، اور آج بھی یہ درگاہیں جو ہیں ان پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، لیکن میرا ان سے ایک ہی کہنا ہوتا ہے کہ کبھی ان مزارات کے اندر داخل ہو کے دیکھا کریں، حافظ قرآن بنتے ہیں اور 24 گھنٹے ذکر و اذکار ہوتے ہیں اللہ اس کے رسول کے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت کرتے ہیں، یہ بدعت نہیں، دین اسلام پڑھایا جاتا ہے، اور وہ دین اسلام کیا ہے کہ فقراء کے دربار پہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، غربا کے لیے فری علاج معالجہ کیا جاتا ہے، اور یہ درگاہیں موجود ہیں تو ہمارے جو پاکستان میں دین موجود ہے، اور صوفیاء پر کام بہت کرنے والا ہے، اور صوفیاء کی زندگی جو ہے وہ ایک مشل راہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو محبوب مصطفیٰ کی حیات طیبہ سے منسلک کیے رکھا، اور وہ چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے اور وہ اسی راہ پر گامزن رہے۔ اور 20 شیخ صاحب نے یہاں جو جمعرات کے دن محفل میلاد ہوتی ہے، محفل میلاد پر بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، میلاد النبی پیدائش نبی بدعت نہیں ہے۔ ہم نے ثابت کیا کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مناتے ہیں، اللہ ان کو
हम उनको अल्लाह का दर्जा नहीं देते। इस सिलसिले में वाज़ेह करते हैं कि अल्लाह का दर्जा हम नहीं देते हैं। मिलाद मनाते हैं उनकी पैदाइश का, और ये बहुत बड़ी बात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दिन आए तो सारी दुनिया को पता चल जाता है, तो फिर हम क्यों ना मनाएं, और मनाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि मोहम्मद से वफात करने तो हम दे रहे हैं। ये जहाँ चीज़ माशाल्लाह जी। मैं मुल्तमिस खुशिया कपूर साहब से पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के यहाँ पे हेड हैं, वो तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात जाहिर करें। मैं तशरीफ नुमाइंदा हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत सारे साथी हैं, उन सबका मैं खुशनुमा हूँ। आज तो आपके इंतज़ार में हमारे डॉक्टर साहब वहाँ पर बैठे हैं और वो आपको वहाँ पर मीटिंग में सारी ब्रीफिंग देंगे। तो मैं आज उनकी नुमाइंदगी करने के लिए आया हूँ। विश्व वेलफेयर एक ऐसा अदारा है जिसमें मेरा ख्याल में जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि पंजाब लेवल पर इस तरह की बल्कि किसी की नहीं है। जनाब हॉस्पिटल के भी मेंबर हैं, उनकी जो कमेटी है। इसके अलावा मेरी ये एजाज़ हासिल है कि जब पहला दिन था डॉक्टर जुवेद अख्तर हमारे साथ आए थे, तो पहले दिन में पहला MOU हमने पीर साहब के साथ साइन किया था इस डिस्पेंसरी में, और 2009 की बात आज तक ये चल रही है। हमारा एक पीर साहब से बहुत बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता है कि हमने THQ वाड़ा में जब खाने का अमल शुरू किया तो बहुत सारे लोग, इवन के बहुत सारे ऐसे लोग, सोशल वेलफेयर के लोग, हॉस्पिटल के लोग कहते थे आप शुरू कर देंगे, पूरा नहीं कर सकेंगे, तो ये शुरू करने की खबर शायद ना आए, आपके जाने की खबर का तूफान आ जाएगा, खाना बंद हो गया, खाना बंद हो गया। हमने कहा हमें भी ऐसा नजर आता है, लेकिन हमें लगता है कि खाना रुकेगा नहीं। 15 साल से एक टाइम का खाना भी कभी नहीं रुका, ये मौसम से हुआ है। तो हमें अल्लाह ताला ने, हमने 15 मशीनें डायलिसिस की THQ को डोनेट की है, गवर्नमेंट की तरफ से 4 है, हमारी 15 है, और हमारी 21 मशीनें और एक अलग सेटअप हमने बनाया, वहाँ पर सेहत कार्ड पर लोगों का फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है। तो इस तरह की 2-3 डिस्पेंसरी है जो चल रही है। हमारे खाने के अपर का इफ्तार जो जगह दुआ में कर रहे थे वो पीर साहब ने करी थी, और उसकी बरकत को हम यकीन करेंगे, अपने उनसे मिलते हैं, हम कहते हैं कि आपकी बरकत में नजर आती है मिलते हैं। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी से संतुष्टि देगी। हमारे लिए आप लोगों का यहाँ पे काम करने का मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि ये बहुत एक वजह है। अनफॉर्चुनेटली कोई हमारा R&D डिपार्टमेंट इसमें इतना काम नहीं कर सका। मैंने एक प्रोग्राम शुरू कराया था इस इलाके के लिए, इलाका बहुत सूटेबल है काम करने के लिए। मैंने कहा था कि सेहत की मदद के लिए यहाँ पे एनीमिया पे हम काम करें, क्योंकि एनीमिया बड़ा इशू है इस तरह के इलाकों में। और जो डॉक्टर्स आते हैं वो जानते हैं कि एनीमिक पेशेंट जो होता है ना, उसमें कम से कम 8 सिम्टम्स ऐसी होती हैं जो 8 बीमारियों की तरफ उसका ध्यान ले जाते हैं। तो हम उसको अगर सिर्फ उसका एनीमिया ठीक करते हैं तो उसकी 8 की 8 बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो वो प्रोग्राम भी हम यहाँ पर आज जो मीटिंग होगी ना हमारी, उसमें तफसीलन हम बात करेंगे और इस सारे प्रोसेस को इंशाअल्लाह लिखेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप आए, और हमें तो चाहिए होती है एक मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, हम मोटिवेशन के लिए हम एक तहरीक है, हम उसके मुहर्रक हैं। जो भी बंदा हमसे तसर होकर अच्छा काम करेगा ना, वो हम उसको अपना हिस्सा समझें। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, मुझे आपका टाइम देखती है, बाकी बातें हम सुबह से आती हैं। थैंक यू। मैं मुल्तमिस हूँ, हमारे उगाड़ा की शान है और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार इनके बहुत सारे खिदमत खल्क के जो काम हैं वो निनाला और उगाड़ा में जारी व सारी हैं। चौधरी फ़याज़ ज़फ़र साहब से कोई तशरीफ़ लाएँ, अपने ख्यालात का इज़हार करें। सॉरी।
एक साथ में हुई है, एक साथ उसके बाद ये नहीं हो सकता वो पीर साहब का जो मरीज थे या करीब लोग बनाते हैं लेकिन दीवाना लोग बनाते हैं। और मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा इनका कर्ज ये है बहुत बड़ा मखलूस इस हवाले से कि ये हर हफ्ते मुझे काम करते हैं मेरे साथ मैं हर लोगों के साथ आपको बहुत शुक्रिया आप यहाँ हमारा तशरीफ लाए हमारे हॉस्पिटल के जो मसाइल हैं एक नंबर बेडिंग कैपेसिटी 98% बना हुआ है बेटर पूरी है और आप कह लें कि 40 साल हो गए हैं तो 40 साल बाद हमारी आप देखते हैं बैठे हुए मैं नहीं कर सकता जो बिल्डिंग जो है वो बहुत बड़ी हुई थी बेडिंग कैपेसिटी जो है और दूसरा वेडिंग कैपेसिटी कम होती है इससे ये होता है कि डॉक्टरों की सहायता होते हैं गरीब डॉक्टर कर सकते हैं तो डॉक्टर जब आप करते हैं वो जो है थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं और फिर ये परेशानी होती है एज अभी एज पॉसिबल आप हमें वेडिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है कम करें आप एक और बात कर दें आप शेयर कर दें आप हमें 50 मिनट दें 50 हम पेशेंट सोसाइटी के साथ पेशेंट डॉक्टर सोसाइटी के साथ मिल के 50 हम लोग आपका बहुत शुक्रिया मेडिसिन के हवाले से भी है थोड़ा सा अगर घूमते बहुत थोड़ी सी मेडिसिन हमारे हॉस्पिटल में किसी की शान होती है हाथ में होती है किसी किसी को शिकायत होती है बहुत शुक्रिया जी जज़ाकल्लाह। अब मैं मुदरिस को अपने वर्दी मिनिस्टर साहब से कि वो डाइट में तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मेरे बुजुर्ग इस आस्थाना निशान जनाब साहबजादा साहब साहब भाई मुहतरम हमारे अल्लाह साहब के भाई हैं और दूसरी लोग बड़ा बैठे तस्वीरी साहब चीफ पंजाब मेरे साथ हैं और दीगर दोस्त मेरे साथ अभी तो मेरा साथ मैंने बड़े जोरदार देखा है मुझे खुशी हुई गाना में देख के और शेर साहब की मैंने 2-3 रोज़ पहले ही आपका नाम जो है वो सुना था और मेरे ख्वाहिश है कि मैं खुद पकड़ा आता हूँ और मैं सच्ची बात है जितने भी दोस्त साथी हैं बैठे हैं सबसे इस्लाम में मोहब्बत पेश करने के बाद मैं बिल्कुल अपनी इस बात पे आऊँगा कि मेरे यहाँ आने का मकसद सबसे पहले तो था कि पीर साहब के पास यहाँ दरवाजे पे आते हुए इनके साथ मेरा सालों का एक रिश्ता ताल्लुक है और जिस तरह एक शख्स अपनी औलाद से प्यार करता है ये मुझे बेटों की तरह प्यार करते हैं अल्लाह इनको ज़िंदगी और सेहत दे और इनकी फैमिली के साथ मेरा एक कल्बी रिश्ता है और इन्होंने हमेशा हमें बड़ी इज्जत से नवाया है। हम इक़्तिदार में हों इक़्तिदार में ना हों इन्होंने कभी भी हमें जो है मैं समझता हूँ कि इज्जत देने से गुरेज नहीं किया और मैं एक ही सिर्फ बात करूँगा कि आप सबको पता है कि जो पीर साहब की साहबजादी हैं वो DC लाहौर में रही हैं और उनकी बहुत मुफायद रही हैं मेरे वो घर जैसी हैं उनके सारे ससुराल से मेरा बड़ा घर वाला ताल्लुक है। जब हम अपोजिशन में गए तो हुकूमत बदलती है तो बहुत सारे लोग पहचानते भी नहीं हैं बहुत सारे लोग जो है वो फ़ोन भी नहीं उठाते तो मैं मुझे बहुत बड़ा काम आन पड़ा और दूसरी तरफ कोई बहुत बड़ा फ़िरौन था वक्त का जिसको साकिब निसार कहते हैं तो उनका कोई इशू चल रहा था उन्होंने वो नोटिस किया हुआ था किसी से ज़्यादती हो रही थी और जुल्म हो रहा था। आप सोचें कि पीर साहब ने अपनी औलाद को क्या ट्रेनिंग और तरबियत दी है कि जब मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आप मेरे दफ्तर नहीं आना आप वैसे ही हमारे लिए आप हमारे घर आएंगे हमारे साथ खाना खाएंगे और काम भी करेंगे
اور ساکر کے ساتھ ساتھ کی عدالت میں بھی سب کمیٹی نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر کچھ نہیں بنتا تو میں ناجائز نہیں کر سکتا. تو یہ بالکل آف ریکارڈ بات ہے. ثاقب خان صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈی سی صاحب کہ ان کا کوئی معاملہ نہیں نکلا. انہوں نے کہا جب نہیں نکلا تو میں پلے سے تو نہیں ڈال سکتی. تو یہ جرت یہ کہنے کی فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈی سی صاحب کا اعتراف تھا کہ جو انہوں نے تربیت دی اور یہ ظرف آیا. تو میں سچی بات ہے موسیقی ان کے خاندان کا. آج مجھے اکھاڑا میں آ کے ویسے بھی خوشی ہوئی کہ ایسے اچھے لوگ اللہ کی ذات نے ہر جگہ رکھے ہیں. جس طرح آپ نے مجھے چند منٹوں میں بھی آپ نے صرف انیشل 2-4 باتیں بتائی ہیں تو مجھے اندازہ ہو گیا. اگر 15 برس سے آپ کا دسترخوان چل رہا ہے نا تو اللہ کی ذات کی آپ کے ساتھ پوری تائید اور فضل و کرم شامل. تو میں آپ سے یہ وعدہ کروں کہ جتنا ساتھ میں آپ کا دے سکوں گا انشاءاللہ. میرا ٹریور 1 منٹ کا ہے, 1 گھنٹے کا ہے, 1 سال کا ہے, اللہ کو بہتر پتہ ہے. تو جتنی بھی اللہ کی ذات نے میری ذمہ داری لگائی ہے میں ایک کارکن کی حیثیت سے آپ کے ساتھ کام کرتا ہوں. کوئی آر نہیں ہے کہ آپ جیسے ساتھی جو آپ کے تمام دوست ہیں کیونکہ مجھے اپنا ریاض بھائی کا پتہ ہے, ریاض اللہ جاگ صاحب ہیں, خود بھی میں اکثر دیکھتے رہتا ہوں. جب کورونا تھا تو خود اسپرے کراتے رہتے تھے. بہت ساری چیزیں خود ہی کرتے رہتے ہیں, بہت سارے اچھے آئیڈیا اپنے دیکھتے رہتے ہیں. تو ایسے نمائندے بھی یقین کریں اللہ کی نعمت ہوتی ہے جو اپنی طرف سے کام کرنے کا جذبہ رکھے. اور جو اراکین اسمبلی بھی ہمارے ساتھ کی وہ بڑے اچھے ہیں. اللہ صاحب کو مزید ہمت دے. میں جو بیٹس کی آپ سے بات کی میں ڈی ایس پی سے بات اسٹارٹ کرتا ہوں کیونکہ ہماری درگاہ کا جو ایف سی سینٹر ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ تو آپ ہمیں جو کہیں کہ ہم آپ کے لیے سڑک طرح حاضر ہیں. اور آپ نے اتنے سالوں اللہ کی مدد سے آپ نے چلایا ہے اور کمال چلایا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ کو فیض کا سلسلہ اس کو مزید بڑھائیں. اس کے لیے جو ہماری جو ہے آپ کو سسٹم درکار ہے ہم آپ کی پوری آپ کی قیادت میں کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس درگاہ کے ساتھ جو لوگ مسلم ہیں جو مریض آتے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم مایوس ہو رہیں گے. میں نے سی او لاہور کو یہ سی او اکھاڑا کو لاہور زیادہ ہم یوز کرتے ہیں تو ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس ایم سی ایم سینٹر کا وزٹ بھی کیا کریں. اس کی جو بھی اس میں کوئی کام ہونے والا ہے مناظر ہونے والا ہے وہ بھی کرائیں. جو میڈیسن کی جو اگر کوئی شارٹیج ہے تو میڈیسن بھی فراہم کریں. جو چیز اس میں ہے میں ان کو آج بلینکٹ اپروول دے کے جا رہا ہوں. جو آپ لوگ ان کو کہیں گے آپ لوگ زبردست. پی ایچ کیو کی جہاں تک بات ہے اکھاڑا میں 2 پی ایچ کیو ہیں. ایک پی ایچ کیو ہمارا اکھاڑا کا ہے, دوسرا ساؤتھ سٹی کا ہے. ہاسپٹل جو ہے بیسکلی ہم سب کے شاید ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاسپٹل بیڈس کا نام نہیں ہوتا. اور اگر خیال بھائی بسترے لانے ہوں تو گھنٹوں میں تو 200 آ جائے گا. ایشو یہ نہیں ہوتا. جب آپ 10 بیڈ بھی بڑھاتے ہیں تو آپ کو ان 10 بیڈوں کے حساب سے تمام ڈاکٹرز, تمام نرسز, تمام فیسلٹی, تمام میڈیسن سب کو بڑھانا چاہیے. اگر آپ خالی بیڈ بڑھاتے ہیں جو کہ ماضی میں کئی دفعہ ہوتا بھی رہا ہے تو وہ زیادتی ہوتی ہے. ہمیں بالکل اس کو دیکھنے میں دیں, خوش دلی سے دیکھنے میں دیں, بالکل اوپن ذہن سے دیکھنے میں دیں. میرا آپ سے وعدہ ہے دوستوں کو انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ بہت بڑی ایمرجنسی نہ ہو لاہور نہیں آتا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. مشین آپ کے گورنمنٹ نے آپ کو دی ہے اور لوگوں کو اکھاڑا میں سٹی اسکین کی سہولت نہیں تھی اور پی ایس باشر صاحب نے آپ ہی کے کہنے سے یہ معاملہ کیا تھا اس وقت بھی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو آگے چل کے جو ایم آر آئی کی فیسلٹی ہے وہ بھی ہم بہت ساری لوگوں میں دے رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ جو کیتھ لیبس ہیں جو دل کے علاج کا معاملہ ہے ان کے لیے بھی ہم بہت سارے ڈی ایچ کیوز میں یہ کام کر رہے ہیں. اور اکھاڑا میں بھی اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ساتھ شامل کریں گے. میں زیادہ باتیں کرنے کا قائل نہیں, میں کام کرنے میں زیادہ بلیو کرتا ہوں. آپ ساتھ چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ورکر لوگ ہیں, ساری زندگی کام کی ہے اور باتوں کی کمائی کھانے والی نہ یہ پارٹی ہے, باتوں کی کمائی کھانے والے اور ہیں. تو صرف باتیں کرتے رہے لیکن باتیں ملتی ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے کہ باتیں ملتی ہیں. لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاؤ تو لوگ باہر اٹریکٹ ضرور ہوتے ہیں. لوگوں سے سچ شیئر کرو, لوگوں کا دکھ دور کرو تو شاید اتنا لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے. سنہرے خواب دکھاؤ, بڑی بڑی باتیں کرو, ٹکا کے جھوٹ بولو تو لوگ باہر اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس جگہ پہ دنیا داری کی بات نہیں ہو سکتی. آخر میں عزت اسی کے نصیب میں آتی ہے کہ جو جینوئن کام کرنے والا, جو جھوٹ پہ نہیں چلاتا, جو ٹریک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتا. تو وقت آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی پتہ چلے گا کہ جینوئن کام کرنے والے ہی
काम करने वाले हैं, प्राकृतिक बत्ती के पीछे लगा के उस तरफ बातें करते हैं। तो हम इंशाअल्लाह अखाड़ा में मैंने जो आपकी चीज़ें कही, जहाँ तक बेड्स का इशू है, मैं आज खुद अभी जाता हूँ और मैं आपको दावत भी दूँगा कि आप मुझे फोन भी करें, तो इंशाअल्लाह हम मिलकर उसको देखते हैं। जो चीज़ आप अखाड़ा के साथ हमें कहेंगे, और खासकर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी का यहाँ होना आप सबके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। तो आप सारे साथी जिस पर हमें गाइड करेंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब आपको पूरी सपोर्ट देगा। जहाँ तक मेडिसिन का डर, हमने मिलियंस ऑफ रुपीज़ की मेडिसिन अलहमदुलिल्लाह प्रमोट की है पिछले 1.5 माह में। उससे पहले बहुत बुरा हाल था। अगर मैं ये कहूँ कि प्राकृतिक बत्ती के पीछे लगाने वालों ने, कौम को खाक दिखाकर मजलूम बनने वालों ने अस्पतालों से नजरियात तक खत्म कर दी थी। और ये हालात लाहौर के अस्पतालों के हो गए थे पिछले चंद सालों में कि अगर किसी को टंका लगाना होता था किसी लेडी के, तो धक्का करके देता। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आते साथ ही वो मेडिसिन जो है प्योर की है। आज इंशाल्लाह मेडिसिन का कोई इशू, कमी पेशी का अवेलेबल नहीं है। आपके बकाड़ा के अस्पताल में 99% मेडिसिन को अवेलेबल करना मेरी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैं आपसे वेट करूँगा बिल्कुल इस बात से आप नहीं। और आपको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी चाहिए होगी तो सीओ यहाँ मौजूद है, सेक्रेटरी साहब से मैं बात कर लेता हूँ कि हमें अपनी जो एमएस रात है ये भी अपने डिपार्टमेंट में हम इंशाअल्लाह आपको मेडिसिन की कोई कमी नहीं आने देंगे। और उसके अलावा भी जो फैसिलिटी हम अखाड़ा शहर के लिए कर सके हम बिल्कुल उसको करेंगे। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि मैं पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के साथ बैठूँ। मैं इस बात में बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ। आप लोगों के पास यहाँ भी बैठूँगा, आपको लाहौर में बुलाऊँगा, आपकी मेहमान नवाजी लाहौर में भी करेंगे इंशाल्लाह। तो शेख साहब वैसे तो शेख जो है वो 2-3 किस्म के होते हैं, लेकिन आप बड़े कमाल शेख हैं कि आपने सखावत वाला शेख होने का किरदार किया हुआ है। आई होप कि आपके बाकी साथी भी ऐसे ही होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सारी टीम के साथ मिलकर इस आस्थाने की तो बात मैं समझता हूँ कि जस्ट अ मिनट कोई बात ही नहीं है। ये MCH सेंटर चलाना वो तो कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह हम पूरे अखाड़ा के अंदर जो आपकी खिदमात है उनमें आपकी टीम बन के आपके साथ काम करेंगे और आपको जो भी सिस्टम रिक्वायर्ड होगी आपको देंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आप सब पर अपनी रहमत करें। मेरे बहुत सारे पुराने दोस्तों ने आज हवाला दिया है, MSF के साथी भी मेरे हैं, तारिक साहब ने भी मुझे अपने बारे में बताया, इसी तरह बाकी भाइयों ने भी। तो इंशाअल्लाह आप सबके साथ मिलकर इस शहर की जो खिदमत हो सकती है, जो यहाँ के हमारे नुमाइंदगण कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर एज अ टीम आपको आपका DHQ जो हॉस्पिटल है इंशाअल्लाह मॉडल बना के देंगे। और जो वक्त आपको थोड़ा सा हमें देना होगा क्योंकि सालों की मेहनत, मैं आपको सिर्फ एक तो चीज़ें जो है अगर बताकर चलूँ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि 2017 में जब मैं गया था तो पंजाब के तमाम बेसिक हेल्थ यूनिवर्सिटी थे, उनमें 100% डॉक्टर हम अवेलेबल करके गए। शबाशी साहब ने तो बदकिस्मती से जब मैं वापस आया तो मुझे 45% DHU ऐसे मिले हैं जिनमें डॉक्टर मौजूद है। बाकी 55% DHU में डॉक्टर नाम की चीज़ नहीं थी। हमने रेवा पंजाब मरियम नवाज साहबा की हदायत में 2 माह के करीब अर्सा में जो 45% वाली रेशो थी उसको दोबारा से अल्लाह की मदद से 85% पर पहुँचा दिया। लेकिन हम उस वक्त रुकेंगे जब हम 101% DHU को डॉक्टर देंगे। और उसके साथ मैं खूसी शुक्रिया अदा करूँगा अपनी बहन मुहतरमा मरियम नवाज शेख साहबा का कि उन्होंने ब्लैंकेट अप्रूवल दी तमाम DHU पूरे पंजाब के 2500 से ज़ायद बनते हैं, तमाम RHC पूरे पंजाब के जो 300 से ज़ायद बनते हैं, हम इनको इंशाल्लाह फुली रिवैम्प करने जा रहे हैं। और इसी साल के अंदर ये कोई 2 साल 4 साल 5 साल का प्रोजेक्ट नहीं आपको मैं बता रहा। 2024-25 के अंदर इंशाल्लाह ये तमाम 2500 का 2500 DHUs और तमाम 300 के 300 RHC जो है ये इस तरह रिवैम्प होंगे कि आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यूरोप का और अफ्रीका का कोई अस्पताल या DHU बना हुआ है इंशाल्लाह। और ये आइंदा चंद दिनों में ये कंस्ट्रक्शन जो है वो शुरू होने वाली है। और उसके साथ साथ जो मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील अगर आपने देखी है, मैं सीओ साहब आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं उनका यहाँ पर इस आने में कोई महीने में एक आध दिन जो है ज़रूर टूर जो है रखा करें। एक दिन यहाँ पर वो डॉक्टर्स और मेडिसिन और तमाम चीज़ें आएँ ताकि हमारे शेख साहब जो है इनको सपोर्ट मिले, एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो आप इनको दें। और इस आस्थाने पे हर महीने एक दिन जो है वो क्लिनिक्स ऑन व्हील्स आया करें और दवाइयाँ भी हुआ करें और डॉक्टर भी हुआ करें और तमाम मामला यहाँ बैठ कर। क्योंकि शेख साहब एक चीज़ जो आपने बड़ी खूबसूरत की है जो मेरे दिल के करीब,
कमैना साहब यहाँ बैठे हैं, इन सबको वो क्रेडिट जाता है कि इन लोगों ने 2016-17 में उस काम का आगाज़ किया था जो लोग इसको कोई मसला समझते ही नहीं। जो मेल न्यूट्रिशन का मसला है, जो इनैमिक बच्चों का मसला है, ये इतना बड़ा मसला है कि हम शायद सारे और बहुत बड़े बड़े रिच फैमिली भी इसको मसला नहीं समझते हैं। इनैमिक बच्चा, रिस्ट्रिक्टेड ब्लॉक पॉपुलेशन वाला बच्चा वो बच्चा होता है जो जिस्मानी कमजोरी का शिकार होता है। हम तो वो दीवारों में किसी और दिन बात होता ना, जिस्मानी कमजोरी का मतलब कुछ और कहते हैं। बेसिकली जिस्मानी कमजोरी मेल न्यूट्रिशन के बच्चे के अंदर गज़ाई कमी होती है जो बाय बर्थ होती है, पैदाइश के वक्त से होती है। और वो बच्चा, उसको आप जो मर्जी कर दें, उसको आप किसी दुनिया के बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा लें, वो अपनी फुल परफॉर्मेंस ज़िंदगी में कभी नहीं दे सकता अगर वो बैठ में। तो आप जब अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सोचते हैं कि यार इसको लंदन भेजें, कोई सोचता है इसको यार अच्छे स्कूल में दाखिल करा दें, तो सबसे जो पहली बुनियादी चीज़ है वो आपके बच्चे का जो आप पर, मैं समझता हूँ कर्ज है कि आप उसको तमाम बीमारियों की इन्वेस्टिगेशन है वो खुद करवाएं। आपके दरवाजे में कोई आया नहीं आया, आपका आया बाप ऐसा माँ फर्ज बनता है कि आप पोलियो ड्रॉप बच्चे को बुलाएं, आप बच्चे को बाकी बीमारी वैक्सीनेशन कराएं। और जो डे फर्स्ट से अब हमारे पास RMC प्रोग्राम जो है वो न्यूट्रिशन के ऊपर बेपना काम कर रहा है। हमने भी नया पंजाब में न्यूट्रिशन बोर्ड सेटअप कर दिया है और बड़े वाइब्रेंट लोग जो है उसके अंदर हमने डाले हैं, दर्द दिल रखने वाले लोग डाले हैं। मुझे अगर पहले आप मिले होते तो मैं जिस तरह से आपको दुख है और दर्द है तो मैं आपको भी न्यूट्रिशन बोर्ड का साथ ज़रूर बनाता हूँ कि आपने जो बात की है ये बहुत कम लोग करते हैं। और मैं आपको इसमें मैं समझता हूँ कि आपको खराज तस्लीम पेश करता हूँ और आपसे वादा है कि हम न्यूट्रिशन पर बहुत काम कर रहे हैं। हम इसका एक वीक जो है हमने पिछले अभी 2-4 दिन पहले हमारा वो पूरा वीक जो है वो खत्म हुआ है। हर BHU लेवल में हमने न्यूट्रिशन का बच्चों का टेस्ट भी किया है, उनको जो रेमेडी थी वो भी दी है। और हमारे तमाम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहाँ पर NCD क्लिनिक्स हमने बनाए हैं वहाँ पर न्यूट्रिशन का पार्ट जो हमने ऐड कर दिया है। आपकी जो मोबाइल क्लिनिक्स ऑन व्हील है जो लोगों के घरों में पहुँचकर उनका इलाज करती है, उसको भी हमने न्यूट्रिशन का पार्ट इसमें ऐड कर दिया। और हम इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं। और मरियम नवाज साहबा ने अभी कल डेरा गाजी खान में जो स्कूल प्रोग्राम शुरू किया, आपने देखा होगा कि बच्चों को जो दूध तकसीम कर रही थी, बेसिकली वो आम दूध नहीं है, वो ऐसा दूध है कि जिसको पीने के बाद बच्चों की गज़ाई कीमत जो है वो इंशाल्लाह पूरी होगी और हम अपने बच्चों को अल्लाह के फजल से फुल फॉर्म में परफॉर्म कराएंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, बातें बंदा करता रहता है, अपनों से बात कर रहा होता है, दिल करता है बात करता रहे, लेकिन बातें भी लंबी हो जाएंगी, फिर वो बातों वाले बंदे आप ऐड हैं। तो इंशाल्लाह ताला काम का वक्त है, यहाँ से हम इंशाल्लाह DH जाएंगे और आपके साथ मिलकर बैठने हैं। इस तरह भी आप करते हैं सर, जो भी करना है आप शेख साहब से बात कर लें। इनके पास पहले जाना है, DH के पहले जाना है, मैं बिल्कुल ऊपर हूँ, मैं इनके साथ बैठना चाह रहा हूँ, इनके मामला सुनना चाह रहा हूँ और इनको इंशाल्लाह फैसिलिटेट करना चाह रहा हूँ। मुझे पीर साहब को अफसोस था कि जब आपने मेरे पास आना है तो जिन लोगों ने 50 साल से ज़्यादा मेरे जनाब के लोगों की खिदमत की, आपने इनका मामला पूरा सुना है। तो पीर साहब के हुक्म को मैं वायलेट नहीं कर सकता। पीर साहब जो आपका हुक्म है उसकी इंशाल्लाह अमीर करके जाएंगे। जी वो कर लेते हैं। ने इस पार्टी के साथ बहुत प्रयास किया है, वन वे हमेशा करता है और मेरे ख्याल में आपको इस पर गौर भी करना चाहिए। जो मरियम हॉस्पिटल में है साउथ डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल होती है कि ये कुपवाड़ा का पूरा डिस्ट्रिक्ट पिछले इलेक्शन में भी, उससे पिछले में भी, इसमें भी हमेशा बंद नहीं करता है। तो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके हुक्म की तमील होगी, आपको गाड़ा में काफी फर्क सर मेरा नाम भी शेख अब्दुल्ला और इस आसाने के साथ साथ हमें हमेशा ही खैर मिला है। तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं तो एक गुजारिश करूँगा कि अभी आपने हॉस्पिटल जाना है, 9 रोड के CM साहब, MS साहब, DHO आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। ये खूबसूरत बयान साहब भी बैठे बड़ा अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ट्रामा सेंटर बनना था 4 साल पहले साहब मुकम्मल तौर पर वो फाल नहीं हो सकता। उसमें जो सेसेस रहती है वहाँ पर 15 रिव्यू होने वाला रहता है। अगर वो हो जाए और इसको हर किस्म से डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा C कैटेगरी में रखा गया है। ये साल बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं आपको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आता हूँ। मैं फरमाइशी प्रोग्रामों को ठीक नहीं करता शीशा बैठा थी। देखिए हम लोग करते क्या है, हम प्रेशर डाल के कहते हैं कि पुरानी जगह पर नाम ड्रामा सेंटर बनाओ। अब ड्रामा सेंटर का मकसद ये है कि वहाँ वो ड्रामा को डील करें और लोग वहाँ पे अगर यूनियन कराएंगे
और वहाँ पर ट्रामा डील होने की बजाय गायनी के सेटअप करें तो गायनी का सेटअप तो BHC में नहीं चल सकता, तो उसके लिए ट्रामा सेंटर क्यों बनाना है? ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग बना देना या वहाँ मशीन पहुँचा देना काम नहीं है। बेसिक चीज़ है HR जो उसके लिए चाहिए, जो उसका स्पेसिफिक HR है वो तो बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में भी मुश्किल से अवेलेबल होता है। तो इसलिए मैं कभी भी साथ में नहीं रहा कि हम गैर जरूरी तौर पर ट्रामा सेंटर बनाए, लेकिन अगर कोई चीज़ बन गई तो उसको मैं बिल्कुल देख लेता हूँ, क्योंकि मेरे दौर में वो नहीं मेरे में बनी, पिछले दौर में बनी है। तो पिछले दौर में तो बड़ा कुछ किस्मत बनता है, जगह कुछ बन गया, बात बढ़िया निकला कुछ नहीं, तो मैं उसको देख लेता हूँ। जो उसकी जेन्युइन नीड होगी वो मैं आपको फिर आखिरी गुजारिश ये है, आखिरी आज की आखिरी का आज की अल्लाह दोबारा में मेडिकल कॉलेज के हवाले से सियासत उनकी फैमिली में बहुत काम किया है। अब जहाँ पर वो पोजीशन स्टिल है उस पर आपको काम करने की जरूरत है। जैसे 2017 के बाद की कोताहियाँ आप ठीक कर रहे हैं, मैं तो चाहता हूँ 2024 वाली कोताहियाँ मेडिकल कॉलेज को हमने ऑलमोस्ट रोटी में ले लिया है, व्यक्ति का प्रॉब्लम आ रहा था। देखिए एक ग्रुप मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ ना, तो बात इसमें ये हम सारे चाहते हैं कि 5 साल तक ही करें, लेकिन हम अपना हिस्सा डालने को तैयार नहीं। हमें पिछले कुछ सालों में ये बताया गया कि शोर ये है कि मैं जनाब शेख साहब का गिरबान पकड़ो बंदों के सामने ऊँची ऊँची बोलो वो शेख साहब ये है गलत कीता है, ये शोर नहीं, शोर ये है मैं अपने गिरबान को देखूँ तो मैं सोचूँ कि मैंने क्या गलत किया। ये जो हमारे बहुत बंदा सबको ईमान में रखते डॉक्टर हमारे प्रोफेसर हमारे, मैं पिछले दिनों शेख साहब ने नजर नहीं आया, शेख साहब मैं शेख साहब एक सर्च कमेटी में बैठा था जो प्रिंसिपल्स के इंटरव्यू ले रही है, तो मैं और सलमान शेख साहब दोनों उस पर बैठे। तो हमारे डिपार्टमेंट में माशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं आता, हमारे डिपार्टमेंट वाले बेचारे सादे तो लोग होते हैं, जरा लोग तो डांट हो जाते हैं। जो स्पेशलाइज हेल्थ केयर वाले हैं वो बड़े 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 प्रोफेसर हैं, माशाल्लाह नहीं से बड़े तो मेडिकल कॉलेज के वाले से बात कर रही हूँ। तो मैंने चंद बड़े प्रोफेसर से ये कहा इंटरव्यू के दौरान कि जनाब आपको अगर हम गुजरात का प्रिंसिपल लगा दें, किसी को मैंने कहा हम आपको फैसलाबाद का प्रिंसिपल लगा दें तो क्या ख्याल है, एक को मैंने गुजरावाला का कहा। अब आप सोचिए लौशनपाड़ा गुजरावाला सियालकोट कितनी दूर है या फैसलाबाद कितनी दूर है। तो मुझे एक बंदे ने किसी एक आधे बल्ला के बली ने कहा कि नाम करना अंदाज होता है, बाकी सब ने कहा कि मेरी तो बात बड़ी कुमार है, मैं तो अकेला ही करके मामला को देखता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि लोगों को फॉर्म में दवाई कर करके सरकारी मेडिकल कॉलेज में आपको पता कितने सस्ते में डॉक्टर बन जाता है। ये जो प्राइवेट बनते हैं उनसे पूछे ना कितने करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जिनको कौम ने अपना खून पसीने की कमाई से इतने बड़े नाम दिए हैं, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर और प्रिंसिपल्स बन गए हैं, जब हम उनको ये कहते हैं कि आप लाहौर से आगे फैसलाबाद चले जाएँ, टोकाड़ा चले जाएँ, गुजरात चले जाएँ, वो तैयार नहीं होते। तो जब तक एक शख्स कोई प्रिंसिपल लगने को तैयार नहीं होगा वो मेडिकल कॉलेज कैसे चलेगा। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एज अ कौम हमारे अंदर है। हम बातें करते हैं, ख्वाहिश करते हैं यार मुल्क तरक्की नहीं कर रहा यार, पाकिस्तान का कितना बुरा हाल हो गया है, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत नहीं हो रही, तो किसने करवानी है? कोई ऊपर से नाजल होगा, वो 1,34,000 पैगम्बर आज आके चले गए। अब तो हमने वो पैगम्बरी वाला काम करना जो इन जगहों पे होता है, जो हर जगह पे होता है। यही हमारा क्लेम है कि सरकारी मदीना सल्लल्लाहु के वारिस हम हैं और अब उनका काम हमने करना है। अपना हिस्सा डालने को हम तैयार नहीं है। यानी वो कहते हैं कि मैं लाहौर बाहर ना जाना और जो बंदी को करते हुए तो फिर ऐसे मुल्क मेरे शेख साहब चल रहे हैं। अगर मुल्क चलाने हैं तो लाहौर से निकलना पड़ेगा, मुझे भी निकलना पड़ेगा। अगर मैं फर्ज करें तो काड़ा ना आऊँ तो मुझे लाहौर में क्या पता चलेगा कि काड़े में अस्पताल का क्या मसला है। मैं आऊँगा तो मुझे पता चलेगा और मुझे बार बार आना है। और मैं इंशाल्लाह आऊँगा आपके पास। अभी भी मैं कुछ दिन पहले साउथ सिटी से छुप करके हो गया था, मैंने तो बड़ी डाला तो मैं साउथ सिटी से हो गया था, मैं DH को नहीं गया था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम सब जो यहाँ बैठे हैं अगर चाहते हैं कि ये मुल्क चले, मैं अगर मुझे नजर आ रहे हैं इन सब के आसपास में मुझे ना बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार इस्लाम का नाफिज हो, ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था, यार दीन मबनी का नाफिज होगा। मुझे आज ये पूछना है सारे दोस्तों से, आप सब यहाँ बैठे हैं, अगर आप सब अपने अपने घरों में जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, चाहे किसी का 1 मरने का है, चाहे 2 मरने का है, चाहे 10 कनाल का है, आप सबको अपने अपने घर की बात से ही करते हैं। आपके घर में वही होता है जो आप कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा तो मुझे बता दें। अगर आज हम सब ये सोच रहे हैं कि हम सब जो यहाँ बैठे हैं
अपने अपने घर में कोई काम ऐसा नहीं होने देंगे जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ की मबनी हो। तो किसी की जरूरत है कि आकर हमें कहे कि दरवाजा नॉक करके नहीं कि बाहर अपने घर में पार्टी क्यों नहीं कर रहे? कोई कह सकता है कि अपने घर में डांस क्यों नहीं करवा रहे? कोई हमें कहने नहीं आता। हम खुद नहीं चाहते, हम खुद यहाँ से मुनाफत कौम है, हम खुद नहीं चाहते कि दीने मोमदी नाफल हो जाए, क्योंकि दीने मोमदी नाफल होता है तो चोरों के हाथ कटते हैं, दीने मोमदी नाफल होता है तो शराब पे चलना पड़ता है, दीने मोमदी नाफल होता है तो बहुत सारी होती है छोटी छोटी जबरदस्त जबरदस्त लड़ना। इंशाअल्लाह जिस दिन हम सब चाहेंगे ना कि ये मुल्क चले, इस मुल्क में दीने मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज हो, जिस दिन हम चाहेंगे ना कि हम सब अपने अपने ऊपर अल्लाह का निज़ाम नाफिज कर लें, अपने अपने आप को ठीक कर लें, ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम भी इस मुल्क में आ जाएगा। और जब तक हम नहीं चाहेंगे इस मुल्क में कुछ नहीं होगा। तो मेरी अल्लाह से हमेशा ये दुआ है कि अल्लाह की रात हम सबको बेशुमार मेरे लोगों का गिरबान पकड़ने की बजाय अपने गिरबान में झांकने की तौफीक अता फरमाए और आने की तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ से हर वीक में एक दिन यहाँ पे मैंने कहा चौकड़िया में दो हो गया। रात को सर रात की ड्यूटी में हार्ट का कोई डॉक्टर है रात को डॉक्टर नहीं लाता तो हार्ट से जाते हैं डॉक्टर रात को हार्ट का कोई डॉक्टर नहीं होता। देखिए मेरी बात मैंने आपसे भी यही बात किया, सिस्टम इस कदर बिगड़ चुका है कि मैं अभी मुरीद के गया रात को अचानक, अब मैं अस्पताल में रात को जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। असल पता रात को चलता है, दिन को नहीं पता चलता, दिन को तो ओपीडी करनी होती है, रश पड़ा होता है। डॉक्टर होते हैं रात एक मुरीद के अस्पताल में 44 डॉक्टर हैं, 44 डॉक्टर, और रात को वहाँ सिर्फ 2 डॉक्टर, कोई रात की ड्यूटी करने को तैयार नहीं था। मैं बैठ के वहाँ पर हॉस्टल बना के आया, अपने रात का बायोमेट्रिक सिस्टम लगा के जो रात की ड्यूटी पे हाथ नहीं लगाएगा तो मकसद है कि सिस्टम पे लड़ना पड़ता है। जब मैं इनसे लड़ता हूँ तो मेरे खिलाफ पोस्टर लगती हैं, मेरी तस्वीर पे रेड मार्क लगा के फिर की तस्वीर लगा के तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाती है, मेरे खिलाफ फेसबुक पे चलाया जाता है। ये आसान काम नहीं है। ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के पीछे नहीं लगा, वो सर आपके पीछे लगा। अल्लाह खैर करेगा। साढ़े तो मुराद है कि जरा सच के पीछे लगेगा, आप की बजाय हकीकत के पीछे लगेगा, वो इंशाअल्लाह। अभी हम तबीर साहब के हुक्म के मुताबिक हम दरबार शरीफ पे हाजिरी के लिए दरबार शरीफ पे हाजिरी चले जाएंगे और उसके बाद अलग अलग एहतमाम है, तमाम साहिबान से गुजारिश है